بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈنٹس السلام علیکم. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. تو فزکس 101 کے لیکچر نمبر 21 جس کا ٹائٹل ہے گریویٹیشن کا جو فورس ہے ہم اس کے بارے میں اس کے ریلیٹڈ جو ہے اس چیپٹر میں پڑھیں گے. تو لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل 5 میتھمیٹکس پر نیو ہیں تو پلیز اس کو لازمی سبسکرائب کریں. ویڈیو اچھی لگے کمنٹ کریں، لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں اس کو. تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں لیکچر کے. جو پرانے زمانے تھے نا، ان میں دو کویسچن پرانے زمانوں میں بہت زیادہ جو تھے وہ لوگوں کے لیے مطلب تھے پریشانی کا باعث. ٹھیک ہے، دو کویسچنس کے بارے میں لوگ بہت زیادہ جاننا چاہتے تھے. وہ کیا کویسچن تھے؟ پہلا تھا کہ وائی ایوری تھنگ فالز ڈاؤن ورڈ، ہر چیز جو ہے وہ ہمیشہ نیچے کی طرف ہی کیوں گرتی ہے. دوسرا کویسچن تھا کہ وائی پلانٹس ریوالو ان دا اسکائی، کہ جو آسمان میں جو سیارے ہیں وہ کیوں گردش کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے درمیان کوئی بھی ایسا لنک نہیں ہے کہ مطلب وہ گردش کریں یا اس طرح کا کوئی سین ہو. ٹھیک ہے، پھر بھی وہ گردش کر رہے ہیں، وہ کیوں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہر سائنسدان نے اس ٹائم پہ اپنے حساب سے جو اس نے کوئی آبزرویشن کی ہوگی تو جواب دینے کا سوچا تھا. تو ارسطو نے سب سے پہلے کہا تھا کہ ارتھ از مدر آف ایوری تھنگ. ٹھیک ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ ارتھ جو ہے وہ ہر چیز کی ماں کی طرح بیہیو کرتی ہے، وہ ہر چیز کو اپنی طرف بلاتی ہے، ہر چیز اس کی طرف دوڑتی چلی جاتی ہے جیسے کوئی بچہ دوڑ کے جاتا ہے. اسی لیے پتھر بھی جب اوپر پھینکتے ہیں تو وہ نیچے کی طرف ہی آتا ہے، جیسے ہی وہ زمین کے گرد پہنچتا ہے وہ زیادہ تیزی سے گرنا سٹارٹ ہو جاتا ہے. یہ تو خیر اس کی کوئی بھی مطلب ہمارے پاس اس کو ہم سائنسی تھیوری نہیں کہہ سکتے کہ یہ سائنٹیفک تھیوری ہے. ٹھیک ہے، یہ اس نے بس چھوڑ دیا تھا اپنے حساب سے. پلوٹمی تھا ایک، اس نے 2000 سال پہلے اس نے کہا تھا کہ ارتھ جو ہے وہ سینٹر ہے اور ارتھ کو سینٹر مان کر سارے سیارے جو ہے نا وہ اس کے گرد گھوم رہے ہیں. تو یہ بھی چیز قابل قبول نہیں تھی. نیکسٹ ہمارے پاس ہے ایک نیکولس کوپریکس تھا. ٹھیک ہے، یہ بھی کوئی سائنسدان ہوگا. تو اس نے یہ تھیوری پرپوز کی تھی، اس نے سن سینٹرڈ تھیوری پرپوز کی تھی. اس نے کہا تھا کہ سن جو ہے وہ سارے سیاروں کا مرکز ہے اور سارے سیارے اس کو مرکز مان کر تمام پلینٹس اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں. تو گلیلیو نے جب یہ اپنی ٹیلیسکوپ کے ذریعے یہ چیز دیکھی تو اس نے واقعی اس چیز کو بھی کنفرم کیا کہ واقعی یہ چیز ایسی ہے کہ سارے سیارے جو ہیں وہ سورج کے گرد ہی گھوم رہے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں کہ گریویٹیشن ہمارے پاس کیا ہے. گریویٹیشن وہ فورس ہوتی ہے جس سے جو ارتھ ہے نا وہ ہر چیز کو اپنے سینٹر کی طرف کھینچتی ہے. ٹھیک ہے، گریویٹیشن وہ فورس ہوتی ہے جس سے ارتھ ہر چیز کو اپنے سینٹر کی طرف کھینچتی ہے. اب نیوٹن کا جو لا آف یونیورسل گریویٹیشن ہے، نیوٹن نے جو یونیورسل گریویٹیشن کا لا پیش کیا تھا اس کو ہم دیکھتے ہیں. ہی پرپوزڈ اٹ از ناٹ اونلی ریسٹرکٹیڈ ٹو ارتھ. اس نے بولا تھا کہ یہ مطلب جو گریویٹیشن کا فورس ہے یا کنسیپٹ ہے یہ صرف ارتھ کے تک ہی نہیں ریسٹرکٹڈ. اس نے دو ماسز لیے جن کا ماس m1 تھا ایک کا اور ایک کا m2 تھا. اس نے کہا کہ اگر دو ماسز بھی ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر رکھے جائیں تو وہ بھی ایک دوسرے پر فورس لگاتے ہیں. وہ فورس کیا ہوتی ہے؟ وہ فورس جو ہے وہ ڈائریکٹلی پرپورشنل ہوتی ہے ان کے ماس کے حاصل ضرب کے، ان کے ماس کے پروڈکٹ کے حاصل ضرب کے ڈائریکٹلی پرپورشنل ہوتی ہے، اور ان کے درمیان جو ڈسٹینس ہوتا ہے نا اس کے انورسلی پرپورشنل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ اس نے ریلیشن دیا تھا کہ ان کے ماسز کے پروڈکٹ کے ڈائریکٹلی پرپورشنل، یعنی جتنا زیادہ ماس ہوگا اتنی زیادہ فورس ہوگی ماسز ان کے، تو اور جتنا زیادہ ڈسٹینس ہوگا اتنی کم فورس ہوگی. تو یہ تھا ہمارا جو ریلیشن ہے پرپورشنیلٹی ریلیشن. اب اس کے لیے ہمیں ایک پرپورشنل کانسٹنٹ بھی چاہیے جس کو ہم نے کیپٹل جی بولا ہے. تو جی ہمارا جو ہے وہ یونیورسل گریویٹیشنل کانسٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ چیز پھر ایکول میں آ جائے گی، ایف از ایکول ٹو جی m1 m2 آر اسکوائر. یہ دیکھیں یہ دو ماسز ہیں جو یہاں پہ اب جی کی جو ڈائمینشنز ہیں نا وہ ہے m-1 L3T-2. یہ کویسچن میں ایم سی کیوز کے طور پر آپ سے پوچھی جا سکتی ہے. نیکسٹ ہے کہ دو فورسز یہاں پہ عمل کر رہی ہیں. ایک جو ہے وہ F2 جو ہے ماس 2m1 پر لگا رہا ہے، ماس 2m1 پر لگا رہا ہے، اس کو ہم نے F21 بول دیا. اور ایک فورس جو ہے وہ ماس m1 جو ہے m2 پہ لگا رہا ہے، اس کو ہم نے فورس F12 بول دیا ہے. اور ان دونوں کی میگنیچیوڈ جو ہے یعنی کہ میگنیچیوڈ جو ہے وہ فورس F کے ہی برابر ہے، یعنی جتنی فورس m1 لگا رہا ہے اتنی m2 بھی لگا رہا ہے اس پر. اور یہ چیز ہے کہ حالانکہ ہم سوچتے ہیں کہ دیکھیں گریوٹی ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے، لیکن یہ اس کے برعکس کہ ہر چیز کو یہ اپنی طرف کھینچتی ہے. یہ نیچر میں پائی جانے والی
3 फोर्सेस और भी हैं इसके अलावा। नेचर में पाई जाने वाली जो 3 फोर्सेस हैं, ये 4 फोर्सेस हैं टोटल ना। तो चारों फोर्सेस में जो नेचर में सबसे वीकेस्ट फोर्स है ना, वो ग्रेविटी की फोर्स है। तो इसको कैलकुलेट करना, या जी की जो यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना कोई ईजी काम नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव वैल्यू होती है। तो उसके लिए हम एक ऑपरेटस, कैवेंडिश एक साइंसदान था, उसने इसके लिए एक ऑपरेटस बनाया था जी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। तो ये ऑपरेटस है उसका। ये देखें यहाँ पे एक थ्रेड है, वो किसी चीज़ से बंधा हुआ है, उसके साथ एक मिरर लगा हुआ है, ठीक है। मिरर लगा हुआ है, उसने 2 मासेस बड़े लिए हैं, ये बड़े एम देखें, 2 बड़े मासेस, 2 छोटे मासेस, और इनके दरमियान ज़ाहिर बात है ये इनके दरमियान कोई कशिश होगी और इनके दरमियान भी कोई कशिश होगी। जब ये कशिश होगी ना, तो ये इस तरह करके ये घूमेंगे। जब मतलब कोई कशिश होगी ना, तो ये मासेस आपस में घूमेंगे। इनको इस तरह दरमियान से एक राड से उसने कनेक्ट किया हुआ है, इस तरह करके राड से कनेक्टेड हैं ये। तो जब ज़ाहिर बात है कि ये कशिश करेंगे एक दूसरे को, तो ये इस तरह करके घूमेंगे इस डायरेक्शन में। तो साथ ही ये जो धागा बंधा हुआ है ना, इसमें भी रोटेशन पैदा होगी, ये भी घूमेगा। तो ये जो रोटेशन है ये स्केल पे नज़र आएगी कि रोटेशन कितनी हुई है। स्केल की जो रीडिंग है मतलब वो सामने मिरर में नज़र आएगी। मिरर में उसकी रेज़ एक चली जाएगी, रेज जाएगी, वो फिर मिरर पे शो होगी, तो वहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये देखें ग्रेविटेशनल टार्क हमारे पास होगा। हमने पढ़ा है कि F इंटू आर जो होता है वो टार्क होता है। F हमारे पास ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ये देखें जो हमने पीछे पढ़ के आए हैं, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी। L/2 क्यों लिया हुआ है? L/2 डिस्टेंस है मास M और कैपिटल M के दरमियान, ठीक है। और 2 क्यों लिया है? और 2 इसलिए कि 2 ऑपरेटर्स हैं, ये एक ये वाला M और एक ये वाला, इसलिए 2 आ गया। तो ये तो था हमारा फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल जो टॉर्क की वजह से, मतलब इसके कशिश की वजह से हमारा ग्रेविटेशनल टार्क पैदा हुआ है। अब देखेंगे एक धागे में भी टार्क पैदा होगा। जब ये देखें ना, ये धागे से चीज़ बंधी हुई है, तो जब ये चीज़ घूमेगी ऊपर धागा भी इस डायरेक्शन में घूमेगा, उसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी उसको कप्पा थीटा हमने बोल दिया है। तो जब ये दोनों एक्विलिब्रियम में होंगे तो ये दोनों टार्क आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। ये 2 जो है वो 2 से कट जाएगा, और G/m/L/r² इज इक्वल टू कप्पा थीटा इन एक्विलिब्रियम। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से जी की वैल्यू ये आ गई। जी को आप एक तरफ करके बाकी सारी चीज़ों को दूसरी तरफ ले जाएं, तो वो हमारी क्या होगी? जी की वैल्यू होगी, ठीक है। ये हमारी यहाँ पे जी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से हम कप्पा जो है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका हमने पीछे जो फ्रीक्वेंसी वो ऑसिलेशंस वाला चैप्टर था उसमें हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ वहाँ से हमने टाइम पीरियड पढ़ा था। जब रोटेशनल मोशन होती है तो उसके लिए टाइम पीरियड होता है 2πI/K स्क्वायर रूट। आई यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस ऑपरेटस का mL/2 है, ठीक है। जब आप इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ से कप्पा की वैल्यू ये वाली आ जाएगी, ये देखें, ठीक है। ये आप इसमें ये वाली वैल्यू रखें, ठीक है। यहाँ से कप्पा की वैल्यू किस तरह निकलेगी कि सारे का पहले स्क्वायर कर लें सारी चीज़ का। इधर t² हो जाएगा, इधर भी ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, ये 4π² आ जाएगा, साथ आई आ जाएगा, और ओवर कप्पा स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको आप उठाकर उस तरफ ले जाएं, बल्कि कप्पा स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि कप्पा के ऊपर तो ये स्क्वायर रूट है, तो ये कप्पा अलहदा ही हो जाएगा। कप्पा उस तरफ चला जाएगा, टी नीचे आ जाएगा। तो वहाँ पे आप आई की ये वाली वैल्यू पुट करें, तो उससे हमारी कप्पा की ये वैल्यू आएगी। ये कप्पा की वैल्यू आप इस फार्मूले में पुट करें, और ये हमारी जी की वैल्यू 6.67259 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। अच्छा, और अब ये हमारे पास जी की वैल्यू आ गई। ये भी एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती है, इसको भी आपने याद करना है। दिस लॉ इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस लॉ को यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ बोलते हैं, क्योंकि ये कायनात में हर जगह पे ट्रू है, ठीक है। तो आप इसको कहीं भी जाके सेटिस्फाई या मतलब टेस्ट कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा किया भी गया, और ये हर जगह पे सेटिस्फाई हुआ भी है। तो अब हम इसके नतीजे में मास ऑफ अर्थ यहाँ से हम निकाल सकते हैं। ये देखें कि ये हमारे पास अर्थ है स्फीयर की शक्ल में। तो ये यहाँ से लेकर जो अर्थ का सेंटर है ना, तो जहाँ पर हमने ये कोई मास पड़ा हुआ है, देखें कि कोई मास होगा या कोई ऑब्जेक्ट होगा, वो इस अर्थ के सरफेस पे पड़ा हुआ है, उसका मास स्मॉल m है, ठीक है। तो ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा ना, वो r होगा, रेडियस ऑफ अर्थ होगा, ठीक है, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ होगा, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अब ज़ाहरी बात है कि ये इसको ज़मीन अपनी तरफ खींचेगी भी, उस पर फोर्स अप्लाई होगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इस मास को ऊपर। तो वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इसके बराबर है जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। यहाँ पे RE आ जाएगा, r² की जगह पे यहाँ पे RE रेडियस ऑफ अर्थ आ जाएगा, और इसकी वैल्यू होती है
6400 किलोमीटर, ठीक है, 6400 किलोमीटर इसकी वैल्यू होती है। ये आपने अब क्योंकि हम आर ई ले रहे हैं, यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ है, तो ये आर ई का स्क्वायर हो जाएगा। अब अप्लाई लॉ ऑफ मोशन, दूसरा कानून अप्लाई करें, वो हमारे पास होता है F इज़ इक्वल टू एम में। अब ये बॉडी पर ये बॉडी नीचे की तरफ जा रही है, तो इस पर ए की बजाय जी एक्ट करेगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये फोर्स जो है इसके बराबर आ जाएगी, एम जी जो है वो ये भी एफ के बराबर है, ये हमने इसके बराबर लिख दिया। अब यहाँ से हम एम को कैंसिल कर देंगे, एम और एम कैंसिल हो गए, तो यहाँ से मास ऑफ अर्थ को आप अलहदा कर दें, ठीक है। ये आर इसके और उस तरफ जाके ऊपर चला जाएगा, नीचे कैपिटल जी आ जाएगा। तो ये जब आपको इसमें इसकी वैल्यू 9.8 डालें, इसकी वैल्यू 6400 डालें और इसकी वैल्यू जी हमने ऊपर निकाली हुई है, तो ये हमारे पास मास ऑफ अर्थ आ जाएगा। अगर हमारे पास मास ऑफ अर्थ आ गया है तो हम इसकी डेंसिटी ऑफ अर्थ भी निकाल सकते हैं। कंसीडर अर्थ टू अ परफेक्ट स्फीयर, वी कैन फाइंड इट्स डेंसिटी। अगर हम अर्थ को एक परफेक्ट स्फीयर जो है वो कंसीडर करेंगे तो हम उसकी डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए डेंसिटी के लिए हमें वॉल्यूम चाहिए होता है और मास चाहिए होता है। मास हम पीछे कैलकुलेट करके आए हैं, वॉल्यूम हम जानते हैं कि स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है, हमने अर्थ को मतलब स्फीयर परफेक्ट स्फीयर लिया है ना, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ हमारे पास क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे आर जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ आएगा, तो ये हम जब कैलकुलेट करेंगे वैल्यूज़ डालकर तो ये वैल्यू इसकी आ जाएगी। नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ अर्थ, रो ऑफ अर्थ। तो ये मास ओवर वॉल्यूम होगी, मास ऑफ अर्थ ओवर वॉल्यूम और अर्थ। तो ये मास ऑफ अर्थ ये जो हमने निकाला है ये आप ऊपर रखें और इस पे डिवाइड कर दें, तो ये आंसर हमारा 5462 kg मीटर पर सेकंड क्यूब आ गया, विच इज़ 5.5 टाइम्स द डेंसिटी ऑफ वाटर। ये वाटर की डेंसिटी से 5.5 गुना ज़्यादा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर हम किसी यूनिट मास को ज़मीन के मतलब सरफेस से लेकर ऊपर लेकर जाएं इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी रेडियस या इन्फिनिटी डिस्टेंस तक उसको लिफ्ट करें, ऊपर लेकर जाएं, तो वहाँ पे हमें वर्क डन कितना करना पड़ेगा, ठीक है। उस वर्क डन को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और आपने याद रखना है कि जब भी हम किसी चीज़ पर वर्क करेंगे उसके साथ माइनस का साइन आएगा। ये देखें, इसीलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फार्मूला है -Gm/r। आर जो है वो रेडियस है, ठीक है, आर रेडियस है वो सेंटर से लेकर अर्थ तक का, अर्थ की सरफेस तक का। और आगे जो बड़ा आर होगा, हमने बड़ा आर कैलकुलेट करना है। आर जो है, बड़ा आर जो है वो टोटल रेडियस है जहाँ तक हमने मास को लेके जाना है, ठीक है। तो ये देखें, हमें खुद वर्क करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने साथ माइनस लगा दिया। अब देखते हैं, इट इज़ द वर्क डन इन मूविंग यूनिट मास फ्राम गिवन पॉइंट टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये किसी भी गिवन पॉइंट से लेकर इन्फिनिटी तक जब हम किसी यूनिट मास को मूव करवाएंगे, यानी कि खला में ले जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर हमारा जो हमने जो वर्क डन करना है वो किसके बराबर होगा, जारी बात है वो dV इज़ इक्वल टू F - FdR। आपको पता है कि वर्क डन किसके बराबर होता है, F × dr। dr क्यों है यहाँ पे, क्योंकि हमने यूनिट मास लिया है, तो उसका रेडियस dr होगा, ठीक है। तो F उस पर फोर्स होगी जो अप्लाई करेंगे हम, ठीक है। डी जो है वो पोटेंशियल होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, ठीक है। वी को हम ग्रेविटेशनल वी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन करें, तो यहाँ से आपने वी आर से लेकर 0 तक लेके जाना है, यानी कि बल्कि सॉरी 0 से लेकर 0 हाइट है, तो वी आर यानी कि आपने ऊपर तक बिल्कुल इन्फिनिटी तक लेके जाना है। तो यहाँ से ये देखें, आर से लेकर आपने इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, dr × F हमने वैसे थोड़ा चेंज करके लिख लिया, ठीक है। तो ये देखें, जब हम इस पॉइंट की इंटीग्रेशन करेंगे v आएगी, तो v में जब हम 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, वी आर में जब v पुट करेंगे तो वो वी आर ही आ जाएगा, 0 - VR यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास Gm × dr/r² आ जाएगा। r से लेकर इन्फिनिटी तक हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, -Gm, ठीक है। ये वाला माइनस इस तरफ शिफ्ट हो गया, -Gm, और यहाँ से हमने r² की जो इंटीग्रेशन होती है वो 1/r होती है, ठीक है। तो हमने कहाँ से कहाँ तक करना है, r से लेकर इन्फिनिटी तक। तो जब हम इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे तो सिर्फ r वाली आएगी वैल्यू, इन्फिनिटी 0 हो जाएगा तो वो चीज़ 0 हो जाएगी, सिर्फ 1/r आएगा। -Gm हमारे पास पहले ही था, और जब हम ये लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये 1/r बनेगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -Gm/r, ठीक है। ये देखें, हमने जो फार्मूला लिखा था उसको हमने प्रूव कर दिया कि जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा लिफ्टिंग अ मास फ्राम सरफेस ऑफ अर्थ टू द इन्फिनिट पॉइंट, ठीक है, वो हमारे पास ये होगा।
सही है। माइनस का मतलब ये है कि हमें वर्क डन इस पर करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि अगर हमने किसी अर्थ की सरफेस से, ये देखें ये अर्थ की सरफेस है, यहाँ पर कोई मास पड़ा हुआ है, इसकी पोजीशन यहाँ पर यू ऑफ आर है, ठीक है। तो अगर हमने इसको उठाकर इस पॉइंट पर लेके जाना है, यू ऑफ, ये हाइट एच है, ठीक है, ये वाली हाइट एच है, अगर हमने यहाँ से उठाकर यहाँ तक ले जाना है तो ये यू आर प्लस एच हो जाएगा, ये वाली जगह यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये टोटल हाइट एच है। पहले यहाँ पे यू आर पे था, जब ऊपर लेके गए तो एच हाइट इसमें ऐड हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस करेंगे तो डेल्टा यू आएगा, बड़ी में से छोटी को माइनस कर दें। अब ये यू की आर प्लस एच के लिए फार्मूला रखें, ठीक है। जी एम एम तो दोनों फार्मूलों के लिए आएगा ना, ये देखें, ये यू आर के लिए हमारे पास जी माइनस जी एम ओवर आर, ठीक है। तो ये दोनों के लिए आएगा जी एम एम, तो हमारे पास दोनों के लिए एम जो है वो मास ऑफ अर्थ है, तो छोटा एम जो है जिस मास को हम उठा रहे हैं, ठीक है, वो है हमारे पास, ये दोनों में ही आएगा। तो दोनों में आएगा तो हमने इसको कॉमन ले लिया, ये बटा एक का बटा आर आएगा, फिर दूसरे का बटा आर प्लस एच आएगा। तो हमने ये कॉमन लेके ना इसको इकट्ठा ही एक स्टेप कर दिया, ठीक है। ये पहले आएगा जी एम एम ओवर आर, फिर जी एम एम ओवर आर प्लस एच, फिर हमने क्या किया, इन दोनों में से कॉमन ले लिया, जी एम एम 1 ओवर आर बच गया, माइनस 1 ओवर आर प्लस एच बच गया। अब आप क्या करेंगे, सारे को आप आर से ज़रब दे दें, ये देखिए यहाँ पे भी आर से ज़रब दी, यहाँ पे भी आर से ज़रब दी, तो ये आर और आर कट गया, 1 माइनस 1 ओवर। अब आप क्या करेंगे, दोनों यहाँ पे जो आर था इसको भी आर से मल्टीप्लाई करें और नीचे भी आर से मल्टीप्लाई कर दें। ऊपर वाला आर बटा आर 1 बन गया, नीचे वाला आर बटा आर इसकी जगह पे 1 आ गया, प्लस एच बटा आर, ठीक है, ये एच बटा आर वैसे ही आ गया। अब ये 1 माइनस को वैसे ही रहने दें, ये नीचे है, इसको उठाकर ऊपर ले जाएं तो इसकी पावर जो है 1 प्लस एच ओवर आर की पावर -1 हो जाएगी। अब देखेंगे एच जो है वो बहुत छोटा है, जो ज़मीन का रेडियस है, या मतलब ज़मीन का अपना रेडियस है, उससे जो एच है वो बहुत छोटा है, यानी कि हमने इसको बहुत छोटे डिस्टेंस पर मूव किया है इस मास को ना। तो इसका मतलब है कि एच इज़ वेरी वेरी स्मॉलर देन आर। तो ये देखें, इसके लिए फिर हम बाइनोमियल थ्योरम लगा के इसको हम जो है वो एक्सपेंड कर लेंगे, तो इससे वहाँ से हमारा जवाब 1 माइनस एच ओवर आर आ जाएगा, ठीक है। इसको बाइनोमियल थ्योरम लगाया हुआ है, तो ये खैर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी ये काफ़ी लंबा हो जाना था इसलिए मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया, ठीक है। तो डेल्टा यू किसके बराबर आ गया, जी एम एम 1 माइनस एच ओवर आर। अब इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दें, ये देखें, ठीक है, ये 1 माइनस 1 ये कट जाएगा, ठीक है, ये चीज़। और यहाँ से हमारे पास जी एम और आर, जी एम और आर को आप अलहदा कर दें, एम इसको अलहदा कर दें, यहाँ से सिर्फ एच बचेगा, यहाँ से एच बचेगा, उसको अलहदा कर दें, तो ये हमारे पास एम जी एच आ जाएगा। ये देखें, ये जो चीज़ है ना, ये स्मॉल जी के बराबर होती है, ठीक है। जो जी हम लेते हैं ना 10 के करीब, वो इसकी वैल्यू ये होती है जी एम बटा आर। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, एम वैसे ही आ गया, इसकी जगह पे जी आ गया, एच आ गया। तो वैल्यू ऑफ जी इज़ नॉट सेम एवरीवेयर ड्यू टू इरेगुलरिटी ऑफ अर्थ, ठीक है। जी की वैल्यू जो स्मॉल जी है ना, इसकी वैल्यू हर जगह पे सेम नहीं होती, क्योंकि अर्थ में इरेगुलरिटीज़ हैं, कहीं पे पहाड़ हैं तो कहीं पे नीचे खाइयाँ हैं, तो इस तरह करके वहाँ पे जो है वो एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है हमारी ज़मीन, मतलब कि वो पिचकी हुई है। तो इस वजह से जो है ना वो जो जी की वैल्यू है वो एक जगह हर जगह पे यकसा नहीं है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स है हमारे पास एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है कि अगर फ़र्ज़ करेंगे हमारे पास एक कोई गेंद है हमारे हाथ में, तो अगर हम इसको, हमने वो वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है कि उस वेलोसिटी के साथ अगर हम इसको फेंकें तो ये खला में चली जाए, मीन्स कि ये कशिश ऑफ जो मतलब ग्रेविटी की जो असर है ना उससे बाहर निकल जाए, मीन्स कि हमने इसको रेडियस इन्फिनिटी के बराबर फेंकना है, ऐसे रेडियस पर फेंकना है जहाँ पर इसकी कोई भी, इस पर ग्रेविटेशन का कोई असर ना हो, ठीक है। यानी कि ज़मीन के हमने सरफेस से इसको ऊपर फेंकना है, वो वेलोसिटी है जिसके ज़रिए हम इसको फेंकेंगे तो मतलब ये ज़मीन के असर से या ग्रेविटी के असर से बाहर निकल जाएगी, खला में चली जाएगी, ठीक है। तो वो चीज़ जो है एस्केप वेलोसिटी होगी, ठीक है। हमें पता है कि अब देखेंगे, अब हम जब हम ज़मीन के सेंटर पे होंगे, ज़मीन के सरफेस पे होंगे, तो वहाँ पे भी इसकी दो वेलोसिटीज़ होंगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और जब ये वहाँ पे इन्फिनिटी में चली जाएगी, ग्रेविटी के असर से निकल जाएगी, तो वहाँ पर इसकी ये दोनों वेलोसिटी जो हैं वो ज़ीरो हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हम वेलोसिटीज़ को ज़ीरो लेते हैं। तो ये देखें 1/2 m v e क्या है,
एस्केप वेलोसिटी स्क्वायर, ठीक है। ये हाफ एम वी स्क्वायर जो काइनेटिक एनर्जी माइनस जी एम एम ओवर आर, ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। तो माइनस क्यों आया? माइनस ये है कि हमें इस पर काम करना पड़ेगा क्योंकि हमने इसे फेंकना है ना ऊपर, तो इस पर हमें काम करना पड़ेगा। तो ये दोनों जो हैं वो 0 + 0 यानी कि जो स्पेस में जाके 0 + 0 हो जाएंगे, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ से हमने वी ई किसके बराबर आ गया? 2gm ओवर आर आ गया। स्मॉल एम से कट गया, तो ये हमारे पास, इसको आप उठा के उधर ले जाएं, स्मॉल एम से कट गया, तो यहाँ से वी ई की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी 2g r आ जाएगी, 2g r, ठीक है। तो अर्थ एस्केप वेलोसिटी ये है कि अगर आपने अर्थ से कोई चीज़ को किसी को फेंकना है तो उसके लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी जो है वो एस्केप वेलोसिटी होगी, और सन का जो सरफेस है उस पर ये वाली वेलोसिटी होगी 618 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ से ये, ठीक है, यहाँ पे हमने स्मॉल वैल्यू जो है जी एम ओवर आर, जो स्मॉल जी की वैल्यू है उसकी जगह पे हमने ये देखें, ये स्मॉल जी रख दिया, ये इस टर्म की जगह पे, ठीक है। तो ये 2gr स्क्वायर रूट आ जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। हमारे जो अर्थ का प्लैनेट अर्थ है, इसके इर्द गिर्द ऑर्बिटल जो हमारे पास होते हैं, ऑर्बिटल पाथ्स होते हैं, उनमें हमारे जो सैटेलाइट्स हैं वो मूव करते हैं, ठीक है। तो हम उनकी वेलोसिटी को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो वो कैसे होगा कि देखें कि जब भी कोई अर्थ जो है जो सैटेलाइट है वो किसी ऑर्बिटल या सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स होती है जिसको हम एम वी नॉट स्क्वायर ओवर आर बोलते हैं, ठीक है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स है जो कि मतलब उस पर एक्ट कर रही है। तो ये अगर सिर्फ ये एक्ट कर रही हो तो फिर तो वो सैटेलाइट जो है वो या नीचे गिर जाए या ऊपर गिर जाए, वो क्यों नहीं ऊपर या नीचे कहीं मूव क्यों नहीं करता? तो उसकी वजह ये है कि उस पर ज़मीन की जो ग्रेविटी की फोर्स है ना वो भी अमल कर रही होती है। जब ये दोनों इक्विलिब्रियम में दोनों फोर्सेस हो जाती हैं तो वो उसी पाथ में मूव करने पर मजबूर होता है। तो मतलब वो हमारे पास क्या होगा कि ये दोनों फोर्सेस जब बराबर होंगी ग्रेविटी की और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो फिर वो उसी पाथ में मूव करने पर मजबूर होगा जो सैटेलाइट होगा। तो यहाँ से हम वी नॉट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, जी ओवर एम ओवर आर स्क्वायर रूट, ठीक है। एम से कट जाएगा, आर भी एक कट जाएगा, इस तरह करके आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम, इफ़ आर इज़ द रेडियस ऑफ प्लैनेट एंड एच इज़ द हाइट ऑफ सैटेलाइट अबव द सरफेस, देन स्मॉल आर इज इक्वल टू आर प्लस एच। अगर हमारे पास आर जो है वो रेडियस ऑफ प्लैनेट है, यानी कि जो हमारे सरफेस के ऊपर अर्थ की सरफेस के ऊपर जो प्लैनेट है उसका रेडियस हमारे पास कैपिटल आर है, और हाइट जो है वो सैटेलाइट की वो हमारे पास स्मॉल एच है, तो जो स्मॉल आर होगा ना वो आर प्लस एच के बराबर होगा। तो आप आर की जगह पे ये फार्मूला रिप्लेस करें, और अगर आर हमारा जो है वो बहुत बड़ा हो एज़ कम्पेयर टू एच, तो फिर ये एच जो है वो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, सिर्फ आर बचेगा, तो ये जी एम ओवर आर आ जाएगा। तो यहाँ से हम किसके बराबर लिख सकते हैं? जी आर के बराबर, जी एम ओवर आर। तो इसकी स्मॉल जी की वैल्यू यहाँ पे बनती है, तो इसको हमने जी आर लिख दिया। अब हम इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं। टाइम पीरियड का हमें पता है कि 2 पाई ओवर ओमेगा होता है, और ओमेगा हमें पता है v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा होता है। तो यहाँ से ओमेगा v बटा आर हो गया। यहाँ पे अब v नहीं हमने लेना, v नॉट लेना है, क्योंकि ऑर्बिटल वेलोसिटी को v नॉट बोला है हमने, सही है। तो 2 पाई आर ओवर जी ओवर एम, ठीक है। तो ये कैसे आया कि ये ओमेगा की वैल्यू आप देखें कि हमारे पास नीचे है ना ओमेगा, तो ये जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये वी नॉट, ये देखें वी नॉट हमारे पास इसके बराबर है ना, ये देखें वी नॉट इसके बराबर है। तो जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये आर ऊपर चला जाएगा, जी एम नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से 2 पाई ओवर जी एम स्क्वायर रूट आर की पावर 3/2, या अगर हम इसका दोनों तरफ स्क्वायर ले लें तो टी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर जी एम ओवर आर क्यूब। तो इसका मतलब ये है कि ये एक कांस्टेंट है ये वाला, तो टी स्क्वायर जो है वो प्रोपोर्शनल टू है आर क्यूब के, सही है। टाइम पीरियड उतना ज़्यादा होगा जितना इसका रेडियस ज़्यादा होगा, ठीक है। ऑर्बिट का जितना रेडियस ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा टाइम पीरियड भी होगा, सही है। ये तो आप सबको पता है। एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, एनर्जी किसी भी सैटेलाइट की होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास होती है जी एम एम ओवर आर, इसके साथ माइनस आएगा क्योंकि हमें पोटेंशियल एनर्जी के लिए वर्क करना पड़ता है, तो इसलिए माइनस आ गया। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। तो यहाँ से वी नॉट स्क्वायर हमने पढ़ा है कि ये देखें किधर गया वी नॉट स्क्वायर, हमने यहाँ से निकाल के आए वी नॉट, ये देखें वी नॉट ये है। आप इसकी स्क्वायर कर दें तो ये जी एम ओवर आर आ जाएगा। ये देखें वी नॉट स्क्वायर क्या होता है? जी एम ओवर आर। तो इसकी जगह पे ये रखें 1/2
एम ये वाला जी एम ओवर आर आ गया, माइनस ये वाली चीज़ ये आ गई, तो -1/2 इसको सॉल्व करके -1/2 जी एम ओवर आर। तो ये देखें ये टोटल एनर्जी माइनस आई है। इसकी क्या रीज़न है कि हमें अगर उसी, तो माइनस का मतलब ये है कि अगर हमें इसको जो है इसी ऑर्बिट में रखना है तो हमें इस पर काम करना पड़ेगा, हमें इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, इस वजह से ये माइनस का साइन इसके साथ लगा हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। ये ऐसे सैटेलाइट्स होते हैं, ए सैटेलाइट दैट स्टेज अबव द सेम पॉइंट ऑन अर्थ। ठीक है, ये ऐसा सैटेलाइट है जो कि सेम पॉइंट ऑन अर्थ पे स्टे करता है, कि यहाँ मतलब अगर हम लाहौर में हैं तो ये हमारे ऊपर होगा। ठीक है, यानी कि जिस तरह ज़मीन रोटेट करती है, ठीक है, अपने एक्सिस के गिर्द, उसी तरह ये सैटेलाइट भी उसी स्पीड के साथ रोटेट करता है। तो इसका मतलब ये टाइम पीरियड इसका इक्वल होगा अर्थ की रोटेशन पीरियड के साथ। ठीक है, इसका टाइम पीरियड भी अर्थ की टाइम पीरियड के बराबर होगा। तो ये देखें इस पर जो फोर्स एक्ट करती है ग्रेविटेशनल वो ये होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स इस पर ये अमल करती है। तो इन दोनों को हम बराबर करेंगे तो एम से कट जाएगा, तो यहाँ से v² ओवर आर जी एम ओवर r² आ जाएगा। तो वेलोसिटी जो होती है वो किसके बराबर होगी, 2πr ओवर टी। 2πr कैसे आ गया कि क्योंकि आर्बिटल हमारा सर्कुलर होता है जिसमें ये घूमता है, तो उसका सर्कमफेरेंस जो होता है वो 2πr होता है, नीचे इसका टाइम पीरियड होगा। यानी v जो s इज इक्वल टू vt हमने पढ़ा था ना, तो यहाँ से v बराबर आ जाएगा s ओवर t। तो s हमारा 2πr है, t यहाँ पे ये आ गया। तो ये वाली v की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करें v² में, gm ओवर r², 2πr ओवर t² ओवर r आ गया। तो यहाँ से gm ओवर r², यहाँ से 4π² r इंटू ओवर t² आ गया। तो यहाँ से gm किसके बराबर आ गया, 4π² r की पावर 3, ये r² उस तरफ जाके r की 3 बन गया, नीचे t² आ गया। अब ये देखें कि यहाँ पे r जो है वो हमारा किसके बराबर है, gm t² ओवर 4π² की पावर 1/3। आल्सो रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो तकरीबन 6400 किलोमीटर है, लेकिन ये इन्होंने यहाँ पे ये लिखा है। तो अगर हमने उसकी जो है जियो स्टेशनरी सेटेलाइट की हाइट मालूम करनी है ना, तो जो आर है ना स्मॉल आर, उसमें से आप रेडियस ऑफ अर्थ को माइनस कर दें तो ये हमारी हाइट आ जाएगी, हाइट ऑफ सेटेलाइट। ठीक है, ये हाइट ऑफ सेटेलाइट आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है केपलर के लॉ। केपलर के 3 लॉ हैं। अच्छा, हमारे पास केपलर के 3 लॉज हैं। केपलर भी एक साइंसदान था, उसने जो मतलब प्लैनेट्स की मोशन थी उसको ऑब्जर्व किया था, लेकिन उसकी कोई भी जो रीज़न्स थी उनके पीछे वो ना प्रोवाइड कर सका। फिर न्यूटन ने अपने लॉज के ज़रिए उनको जो है वो रीज़न्स प्रोवाइड की, उनको एक्सप्लेन किया। ठीक है, उसने सिर्फ ये चीज़ें नोटिस की थी, लेकिन इसकी कोई भी उसने डेरिवेशन या कोई इस तरह का सीन नहीं किया था। तो इसका फर्स्ट लॉ है कि प्लैनेट्स मूव इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स विद द सन एट वन फोकस। उसने कहा कि तमाम प्लैनेट्स जो होते हैं ना वो एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में बेज़वी शक्ल के जो ऑर्बिट होते हैं उनमें मूव करते हैं, और सन उनका फोकस होता है, यानी कि सन उनका सेंटर होता है, उनको उसको फोकस करके वो सारे जो हैं प्लैनेट्स उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। ये उसका फर्स्ट लॉ था। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड लॉ, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल टाइम्स। उसने कहा था कि अगर आप सन से लेकर प्लैनेट तक एक वेक्टर आप ड्रा करें, तो उसको वेक्टर जो है वो ड्रा करें तो वेक्टर का रेडियस आर होगा। तो जैसे यहाँ से लेकर वो जितना घूमेगा ना वो वेक्टर, जितने टाइम में जितना वो एरिया कवर करेगा, नेक्स्ट भी वो उतना ही उतने टाइम में एरिया कवर करेगा, यानी इक्वल एरिया कवर करेगा इक्वल टाइम्स में। ठीक है, यानी कि अगर वो यहाँ से लेकर यहाँ तक वो थीटा एंगल के साथ मूव किया है और उसने ये डिस्टेंस कवर किया, तो नेक्स्ट भी वो इतना ही इतने टाइम में इतना ही क्लियर करेगा। तो ये देखें एरिया स्वेप्ट इन dt, ठीक है, दैट इज इक्वल टू DA ओवर 1/2 r² d थीटा, यानी कि dt टाइम में उसने कितना एरिया कवर किया, 1/2 r² d थीटा। तो रेट ऑफ स्वेपिंग, अब आप क्या करेंगे, दोनों तरफ टाइम डेरिवेटिव ले लें इसका। तो जब यहाँ पे आया DA ओवर dt बन गया 1/2 r², जब यहाँ पे d थीटा के नीचे dt आया ना, तो ये थीटा का क्या बन गया, फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, लेकिन हमने पढ़ा है कि r² थीटा का फर्स्ट डेरिवेटिव h के बराबर है, हाइट के बराबर। ठीक है, तो DA ओवर dt हमारे पास फिर क्या हो गया, यहाँ से h/2, इसकी जगह पे हमने h रखा, ये ओवर 2 वैसे ही आ गया। तो इसका मतलब है कि ये तो कांस्टेंट है। तो यही बात उसने बोली थी कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में वो इक्वल एरियाज़ को मतलब कवर करेगा। ठीक है, इक्वल एरिया कवर करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है केपलर का थर्ड लॉ, द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, उसने
उसने कहा है कि जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है ना वो प्रोपोर्शनल होगा सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। जब मतलब वो इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में करेगा तो इलिप्स जो होती है उसका एक सेमी मेजर एक्सिस होता है जिसको उसने यहाँ पर ए बोला है, ठीक है। वो बोलता है कि इसका जो टाइम पीरियड होगा उसका स्क्वायर जो है वो प्रोपोर्शनल होगा क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, यानी कि ए के क्यूब के जो है वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा उसका टाइम का स्क्वायर, टाइम पीरियड का। तो यहाँ पे सेमी मेजर एक्सिस हमारे पास ए है। फॉर एन एलिप्टिकल ऑर्बिट न्यूटन सेड, न्यूटन ने ये चीज़ तो हम पहले भी पीछे प्रूव करके आए हैं कि टी इज़ इक्वल टू 2πa3/gm का स्क्वायर रूट, तो यहाँ से टी स्क्वायर 4π²gm/a3 आ गया। तो ये चीज़ मैंने बताया था कि कांस्टेंट है, तो यहाँ से टी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ये टी स्क्वायर, ये नीचे चला गया, टी स्क्वायर/a3 जो है वो कांस्टेंट है फॉर ऑल प्लैनेट्स। यही थर्ड लॉ है केपलर का। नेक्स्ट हम चलते हैं वेरिएशन ऑफ जी, यानी कि हाइट के साथ साथ जी, स्मॉल जी जो हमारे पास है उसकी वैल्यू कैसे चेंज होती है, ठीक है। वैल्यू ऑफ जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर, ठीक है। तो हमें पता है कि F इज़ इक्वल टू mg होता है और ये फोर्स इसके बराबर भी होती है gm इंटू मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो जी हमारे पास यहाँ से एम से कट गया, GME/r स्क्वायर आ गया। ये देखें मैंने स्मॉल जी की वैल्यू भी आपको बता दिया। अब वैल्यू ऑफ जी विल बी कांस्टेंट ऑल ओवर द सरफेस फॉर अ परफेक्टली स्फीयर अर्थ। अगर हमारा जो अर्थ है वो परफेक्टली स्फीयर है, उसमें कोई भी इरेगुलरिटी नहीं है, तो उसकी जी की वैल्यू जो स्मॉल जी की वैल्यू होगी वो ऑल ओवर द अर्थ जो है वो कांस्टेंट होगी। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ एट हाइट, अब हम देखेंगे कि हाइट के साथ साथ जी की वैल्यू पर क्या असर पड़ता है। अगर हम हाइट अबव द सरफेस ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, अगर हम जो अर्थ का सेंटर है वहाँ से जो डिस्टेंस है वो आर है, अगर हम उसको किसी चीज़ को उठाकर ऊपर ले जाएं प्लस हाइट के साथ, यानी कि हाइट एच पे ले जाएं, तो फिर आर जो है वो स्मॉल आर इस आर प्लस एच के बराबर हो जाएगा। तो हमारा जी ऑफ एच किसके बराबर हो जाएगा, GM/r प्लस एच, ठीक है। इस वाली इक्वेशन में GM, ठीक है, ओवर आर प्लस एच, आर ई की जगह पे आर प्लस एच का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हम अगर इन टर्म्स ऑफ जी नाट लिखें, जी नाट हमारे पास GM/r स्क्वायर होता है, तो जब हम जी एच को इन टर्म्स ऑफ जी नाट लिखेंगे वो जी नाट R/r प्लस एच होल स्क्वायर आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ये थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई इसको कर लीजिएगा। तो अगर हमारा एच जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ से बहुत छोटा हो, बहुत छोटा है, तो हमारे पास जी ऑफ एच ये चीज़ आ जाएगी। इस यहाँ पे भी आपने बाइनोमियल थ्योरम थोड़ा सा अप्लाई करके तो उसको सॉल्व करना है, तो ये चीज़ आएगी हमारे पास। मैं अब इतनी गहराई में नहीं जा रहा, लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है। तो ये इसका मतलब ये है कि अगर हाइट बहुत कम है तो इसमें जो चेंजिंग आएगी ना जी की वैल्यू में वो लीनियर चेंज आएगी, कि यानी जितनी हाइट होगी उतनी कम, जितनी कम हाइट होगी उतनी ज़्यादा जो है वो जी की वैल्यू होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं कि अगर हमारे पास एच जो है वो बहुत ज़्यादा हो, हाइट बहुत ज़्यादा ले जाएं हम, तो जी एच हमारे पास ये अप्लाई होगा GM/r प्लस एच ओवर 2। तो जी तकरीबन बराबर होगा 0.223 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेस दैन, वेरी लेस दैन जी नाट। ये तो 9.8 से बहुत थोड़ा है। तो देखेंगे जितनी हाइट हमने ऊपर की ज़्यादा की तो ये जी जो है वो हमारे पास बहुत कम आ गया। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। लास्ट पे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाजमी शेयर करें। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।